اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج 12 رجب پیر کا دن، ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ خاص وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، تمام تر تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور شادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت، اگر اس سورت کی ایک آیات بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ دنیا جہان کے سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے گی، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ گنتے تھک جائیں گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں، آج یہ ایسا وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا یقین نہیں کریں گے تو بندہ فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، مایوس نہیں ہوگا، اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آئیے اس بابرکت عمل کی طرف آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ آپ نے کرنا کیسے ہے، اور یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سادہ، مختصر اور آسان سا درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ 3، 7، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ آپ نے نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، بینک میں بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لے، اپنی بیٹے بیٹی کہیں بھی اچھی جگہ رشتے کرنے ہیں، اس کی نیت کر کے آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے نیت کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی اور حاجت ہے، آپ نے اس حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ بہتر یہ کہ آپ اکٹھی ساری حاجتوں آپ کی نیت کر لیں۔ العرض جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر
हाजत पूरी हो जाए तो आज आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। आपकी वो हाजत, वो मकासद कई सालों से पूरे होने का नाम नहीं ले रहे। आपने दर दर की ठोकरें खा ली हैं, लोगों के ताने सुन लिए हैं, लोगों नौकरी के लिए सिफारिशें करवा ली हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आपके काम नहीं बढ़ रहे, आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें आ रही हैं। तो इस वजीफे को कर लें, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो इस सारे मसाइल का हल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील में मौजूद है। आज ये एक आयत पढ़कर अपने सारे मसाइल को हल करवा लें। आपने इस आयत मुबारक को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? तो जो कीजिएगा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 1 बार, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। रजब के महीने में लोग बहुत लापरवाही से गुजारते हैं, जिस तरह रबी अव्वल के महीनों को भी लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया। लापरवाही करते रहते हैं, हमेशा पछताते हैं, काश हम इस खास कबूलियती घड़ियों की कदर होती। तो आज किसी के सामने हाथ फैलाना ना। जो कदर करता है, जो इस खास कबूलियत की घड़ियों में रब्बुल करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मुहताज नहीं रहता। जो सारी जिंदगी या उम्र ना मिल सका, आज रजब की 12 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़कर मिल जाएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ ले तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों का है। वो सिफाती नाम या रज़ाक़ु है। या रज़ाक़ु का मतलब रिज़्क़ देने वाले। जब आप रजब के महीने में रिज़्क़ पढ़ या रज़ाक़ु पढ़ कर रब्बे करीम से मांगेंगे तो अल्लाह अपने नाम या रज़ाक़ु के तुफ़ैल रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देगा। अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा, तंग दस्तियाँ ख़त्म कर देगा। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये सब या रज़ाक़ु पढ़ने के तुफ़ैल से होगा। आपने रिज़्क़ को कैसे पढ़ना, आपने या रज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु। इस तरह से या रज़ाक़ु आपने हाथ की उंगलियों में पढ़ ले या तस्बीह के दानों में 11 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिसके हाथ में ये इस्म आज़म लग जाता है, इसको मांगना नहीं पड़ता, इसको बिन मांगे मिल जाता है। मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है, इसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या रज़ाक़ु को पढ़ कर दूसरे नंबर पर, साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आज का खास वजीफा है। ये एक सूरत है, तो जो कीजिए, ये कौन सी सूरत है जो रब को इतनी पसंद है और पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता? एक बच्चा अपनी माँ का लाडला तो माँ अपने तन धन से सब कुछ बेचकर इसकी हर ख्वाहिश। जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है। ये सीने का राज आज आपको बता रही। ये दिन या रातें इतनी खास हैं कि इस पूरे महीने में किसी भी वक्त वजीफा पढ़ लें, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद में कामयाबी मिल जाती है। सूरह कौसर अल्लाह की महबूब और लाडली सूरत है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आपने चौथा और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है, सबसे पहले खास बात बताऊंगी, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने चौथे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो कुरान पाक की एक आयत है, अभी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। चौथे नंबर पर आपने इस आयत मुबारक को कितनी बार और कैसे पढ़ना है, तो जो कीजिएगा, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आपने इस तरह इस आयत मुबारक को पढ़कर अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ लेना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ करनी है। इसके बाद आपका अमल ख़त्म हो गया। आपने सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लेने हैं। तो इसके बाद आपने 3 बार
11 बार 5 बार दुरूद शरीफ पढ़ना जो अमल के शुरू में आपने पढ़ा था। अमल की मुकम्मल तरतीब। आज 12 रजब पीर के दिन पहले बार वज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने 3 बार 7 बार 11 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। 1 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले आपने 11 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़ाक़ को 11 बार पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है 3 बार। फिर आखिर में चौथे नंबर पर आपने कुरान पाक की आयत मुबारक फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 100 बार पढ़नी है। फिर आखिर में 3 बार 7 बार 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले जो भी आपने अमल में शुरू में पढ़ा था। ये अमल करने के बाद आपने रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अपनी सारी मुश्किलात सारी हाजतें अपने अल्लाह को बतानी है और तमाम हाजतों को आपने अल्लाह ताला से पूरा करवाना है। सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए आपने दुआ करनी है। नाज़रीन, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये वजीफ़ा आपको बावज़ू हालत में करना है। ये वजीफ़ा आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास गए और इनके सामने शुरू से आखिर सूरह रहमान पढ़ी। सहाबा कराम खामोश रहे। आपने फरमाया, मैंने जिन्नात से मुलाकात की और तब ये सूरत जिन्नात पढ़ रहे थे। उन्होंने तुमसे अच्छा जवाब दिया है। जब भी मैं पढ़ता फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो वो कहते, ऐ रब, हम तेरी नेमतों में किसी चीज़ को नहीं जुटलाएंगे, बस तेरे लिए हम्दो सना है। हज़रत अब्बास बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया, ज़ाहिरी नेमत इस्लाम है, बातिनी नेमत ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम बद अमालों पर पर्दा रखा हुआ है। ज़ाहिरी नेमत सेहत तंदुरुस्ती इंसान के इखलाक हैं। बातिनी नेमत मारिफत अकल और ज़ाहिरी नेमत जो आँखों से नज़र आती है, मसलन इंसान का माल और सबाब और मर्तबा, इसका हुस्न जमाल, इबादत और अतात की तौफीक। और बातिनी नेमत इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह का इल्म और इस पर हुस्न यकीन, अल्लाह ताला के बंदों से मसाइब और आफात को दूर करना। इस सूरह में फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 21 बार जिक्र फरमाया है। बार बार इस आयत को जिक्र करने का फ़ायदा इस आयत के मायने को ज़हन में बिठा लेना है और इसकी अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि जो चीज़ हम अहम होती है इसका बार बार जिक्र किया जाता है, उसकी ताक़ीद की जाती है। जिस चीज़ के जिक्र में लज्जत हो इसका भी बार बार जिक्र किया जाता है। अपनी नेमतों के जिक्र से मुसलमानों को लज्जत हासिल होती है, इसलिए इसका बार बार जिक्र फरमाया गया है। ये बाकी रहा ये सवाल, ये आयत 31 मरतबा क्यों जिक्र फरमाई, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं जिक्र फरमाई? तो ये तादाद तो ऐसी है, इसलिए इस खास तादाद की हिकमत और इसके फ़ायदे को जानने के लिए कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं है? इसकी तरजीह में दिमाग लड़ाने में दूर दराज की मुनासिबत तो हिजात तलाश करने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान घराने में बाहैसियत पैदा होना, मुसलमान की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत होना, ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत सी नेमतों में से एक नेमत है। हम इंसान अल्लाह की नेमतों को कभी शुमारते हैं, कभी ना, कभी इनके शुक्र अदा करते हैं, कभी हमारी ज़िंदगी का सफ़र अज़ानी आवाज़ से एक मुसलमानी घराने में शुरू होता है, नमाज जनाजा पर ख़त्म होता है। ये भी तो मुमकिन है कि हम किसी हिंदू या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले घराने में पैदा होते, फिर इस्लाम की तलाश करके इसमें दाखिल होते, मगर मेरे रब ने हमें ये इजाफी नेमत दी है, हम अल्लाह की इस नेमत के शुक्र में मसरूफ़ हो जाएं। इसने हमें बहैसियत मुसलमान पैदा किया, बहैसियत मुसलमान हमारी मौत मुतवक्को फरमाए तो शायद उम्र बीत जाएगी तो शुक्र का हक अदा ना हो पाएगा। ज़िंदगी को अगर दिल फरेब और आसान बनाना है तो लोगों में नुक्ता निकालने की बजाय अपने रब की नेमतों को गिन कर और इनका शुक्र अदा करने की आदत बना लीजिए। ज़िंदगी खूबसूरत और बाबरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबके दुख और तकलीफ़ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए। हम सबको 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए।
आमीन सुमा आमीन। रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ और बरकत की वसअत के लिए और कुशादगी के लिए अल्लाह के नामों में से एक नाम कमेंट्स में तहरीर कर दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।